ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ 4 ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ 3 ਪਾਰਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ 3 ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਸ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਗੌਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੌਸ ਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface when medium is vacuum। means Gauss law ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਫਾਈ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਫਾਈ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਲਈ ਡਬਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੂਪ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ, E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ, E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਚਾਰਜ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਸਰਫੇਸ ਵੈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਵੈਕਿਊਮ। ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਕਿਊਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਏਅਰ ਵਾਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਗੌਸ ਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਥਰੂ ਅ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 1 ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਜੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਅ ਸਰਫੇਸ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਕਿਊਮ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੌਸ ਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੌਸ ਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਜ਼ਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾ। ਗੌਸ ਲਾ ਦੀ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੌਸ ਲਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ, E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਚਾਰਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ ਡੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੌਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਸ ਦਾ ਜੋ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਗੌਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਗੌਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਆਫ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਸ ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਵੋਲਿਊਮ ਓਪਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਵੋਲਿਊਮ ਡੈਲ ਡੋਟ E ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਉੱਪਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ E ਹੋਗੀ ਇਕੁਅਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਡੈਲ ਡੋਟ E ਡੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੋਲਿਊਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਡੀ ਵੀ, ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਰੋ ਡੀ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਡੈਲ ਡੋਟ E ਡੀ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ
वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी ये बन जाएगा अपने को नाल बाहर की आ जाएगा अपने को 1/ε0 क्योंकि आपां ओनली चार्ज की वैल्यू पुट की है। हुण इत्थे इंटैग्रल वैसे एवें कैंसल नहीं होंदे बट मैं तुहानूं सीधा दस रही हाँ इदां हो जाएगा मतलब किस तरह नाल आएगा। तो तुहाडे कोल आंसर की बनेगा डिफरेंशियल फॉर्म की आएगी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लीयर ये तुहाडे कोल की बन जाएगी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गोज लॉ। ये तुसीं की करनी है ध्यान दे विच रखनी है मीनस की एक्सप्रैस कर रहा है ये जो अपने कोल रिजल्ट आया की दस रहा है कि डेल ऑपरेटर है विच इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस तरह नाल की आपां सॉल्व कर सकते हैं गोस लॉ दी डिफरेंशियल फॉर्म नूं। क्लीयर हो गया आई होप तुहानूं समझ आ चुकिया। नैक्सट आपां गल करांगे एप्लीकेशनस दियां गोस लॉ दियां किहड़ी किहड़ी एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन की अगर मैं गल करा फर्स्ट वन की है सारिया एप्लीकेशनस है मेनली गोस लॉ ने किस दी गल कीती सी उन्होंने की कीता सी अलग अलग सरफेस ते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो किया कि किस तरह चार्ज नूं डिस्ट्रीब्यूट किया जाऊगा। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो हुण अपने कोल कोई सरफेस है ये ठीक है जी इस साइड की है इसका अगर आप सर्कल ना कर लिए थोड़ा जा इस तरह ही समझ लैंने वेट हाँ जी इस तरह इत्थे की है सर्कल दे विच है। क्लीयर हाँ जी इस तो बाद अगर मैं गल करा इस दे विच की लाइन पास हो रही है इस ते की प्रेजेंट है अपने को चार्ज प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज की है प्रेजेंट है इस उपर इस तरह नाल तो जदों की है सेंटर दे विचों लाइन पास होएगी एक ही अपने को स्मॉल सरफेस डी एस देखो डी एस का मतलब की होंगे स्मॉल सरफेस आपने की किया हुण एक की लै लिया कंसीडर कर ली कि एक लाइन चार्ज है जो पैरलर किस दे एक्स एक्सिस दे है उत्थे की है लाइन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है किस दी लैम्डा दी की चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है स्मॉल सरफेसिस ने डी एस इस दे विचकार इस पूरे का की है स्मॉल सरफेसिस है जो 3 सैक्शन दे विच डिवाइड किया गया। देखो अगर ए मेन की अपने को S1 सरफेस होएगा दैन अपने को एक ही हो जाएगा S2 सरफेस दैन ये अगर आप गल करिए S1 S2 एंड S3 दिस वन इज S3 थ्री सरफेसिस हो गए इन्हां ते हुण की किया आपां ने चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया इन्हां नूं की करांगे आपां सॉल्व करांगे तो किस तरह नाल आएगा। देखो EDS अगर आप गोस लॉ अप्लाई करिए तो गोस लॉ की सी ई वैक्टर डॉट DS वैक्टर किस दे इक्वल हो जाएगा अपने को Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हुण क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा बाय एल एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा एल की है अपने को क्यू की वैल्यू है कि है जो चार्ज इनक्लोज ते आपां की है गल कर रहे सी गॉसियन सरफेस ते तो हुण ये 3 की अगे सरफेसिस से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि आप 3 सरफेस ले हैं S1 S2 एंड S3 ई वैक्टर डॉट DS वैक्टर S1 दे लई ई वैक्टर डॉट DS वैक्टर S2 दे लई प्लस S3 दे लई की अपने को ई वैक्टर डॉट DS वैक्टर 3 सरफेसिस आ गए इन्हां दी वैल्यू अपने को किस दे इक्वल है अपने को हुणे आपां लिखी है लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लीयर हुण इस दे विच देखो जो फर्स्ट सरफेस की अगर मैं गल करा इनू हुण डॉट प्रोडक्ट नूं अगर सॉल्व करदे आपां की लिख लैंदे EDS cos थीटा तो फस्ट दे विच अगर मैं गल करा फस्ट दे विच जो एंगल बन रहा वो 0 डिग्री बन रहा तो इसका जो अपने को S2 एंड S3 सरफेसिस ने S2 एंड S3 सरफेसिस ने इत्थे एंगल कितना बन रहा अपना 90 डिग्री बन रहा तो 90 डिग्री cos 90 कितना हुंदा अपने को 0 cos 90 कितना हुंदा 0 छोड़ देंगे इत्थे अपने को की है 0 एंगल बन रहा तो cos 0 कितना हुंदा 1 तो इस वे दे नाल अपने कोल अगर मैं इत्थे वैल्यू पुट करनी चाहवां तो अपने कोल सिर्फ S1 सरफेस दी आ जाएगी तो की बन जाएगा ई वैक्टर बाहर आ जाएगा अपने कोल DS आ जाएगा S1 सरफेस इज इक्वल टू की चल रहा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लीयर हुण देखो ये की है अपने कोल एक की है चल की रही है अपने कोल मीनस आपने वायर चल रही है लीनियर वायर है तो DS सरफेस की हो जाएगा 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट एल नाल की हो गया एल कैंसल हो गया जिस नाल तुहाडी अपनी ई दी वैल्यू की आ गई
ई ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 1/2 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਟਾਈਮਸ ਲੈਮਡਾ ਬਾਈ ਆਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਨਫਲਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਹੋਏਗਾ। थोड़ी जी ड्रा कर लें आप। हाँ जी, आ की आ गया अपने कोई सरफेस लिया आपने। इस तो बाद की है, इस दे उपर की है, अगर आप गल करिए सिलेंड्रिकल बनाना पएगा इस तरह ना। हाँ जी, हुण इस दे जो ये की है, इस ते की है चार्ज की है, पॉजिटिव चार्ज की है डिस्ट्रीब्यूट किया होया। क्लीयर। इस तरह नाल तो हुण यह की है, इसका जो सरफेस है स्मॉल सरफेस लवांगे DS, वैसे जो कंप्लीट सरफेस है वो S1। इस दे विच भी 3 पार्ट लवांगे, अपना S1 सरफेस हो जाएगा। नैक्सट ये अपने को स्मॉल पार्ट है S3 सरफेस हो जाएगा, और नीचे आप की लै लेंगे S2 सरफेस लै लेंगे। इस तरह नाल की सरफेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। दैन सिमिलरली आप गोस थ्योरम की करांगे, अप्लाई करांगे, तो अपने को ये बन जाएगा। देखो हुण इस दे विच S1 ते भी जो एंगल है थीटा किन्ने अपने को 0 डिग्री, तो S2 ते भी किन्ने थीटा किन्ने अपने को 0 डिग्री। हुण S3 ते अपने को जो थीटा वो किन्ने 90 डिग्री, तो कोस 90 किन्ना होंदा 0, बाकी जो थीटा 0 डिग्री है वो किन्ना होंदा अपने को 1। तो इस वे दे नाल जदों तुसीं गोस ला अप्लाई करोगे तुहाडे कोल की बन जाएगा, डायरैक्ट करवा रही हैं S1 EDS कोस थीटा, एक अपने को S1 सरफेस का बन जाएगा, S3 का 0 हो जाएगा, एक S2 सरफेस का बन जाएगा EDS कोस थीटा। क्लीयर। तो थीटा अपने को 0 डिग्री है, तो अपने को सीधा की आ जाएगा, हुण दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि ये थीटा एंगल तो 0 डिग्री आ गया, EDS रह गया, तो 2E आप की कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे, सरफेस की आ जाएगा DS क्योंकि सेम चल रहे हैं, इज इक्वल टू कि आ जाएगा सिग्मा S एप्साइलन नोट। ये किस दी वैल्यू होंदी है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी, जदों आपां किसी प्लेन की गल कर रहे हैं। क्लीयर। नीचे कितना चल रहा एप्साइलन नोट, तो हुण सरफेस की वैल्यू कितनी आएगी ये विच अपने कोल, अगर आप 2E की अपने कोल DS सरफेस है, इसकी अगर मैं वैल्यू नूं पुट करा तो की आ जाएगा अपने कोल S आ जाएगा, इज इक्वल टू की चल रहा है सिग्मा S बाय एप्साइलन नोट चल रहा है। ठीक है जी, S नाल S की हो गया, कैंसल हो गया, तो अपने कोल अगर मैं गल करा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2S आएगा। जस्ट सेकेंड, नहीं S ही आएगा। तो इस तो बाद E कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्साइलन नोट, आ जो 2 है नीचे आ जाएगा। इस तरह नाल ये अपने कोल की बन गया, सैकेंड रिजल्ट बन गया, किसका बन गया जी, अपने कोल जदों की है इनफाइनाइट प्लेन शीट ते चार्ज की हो रही है अपने कोल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया, जो इलैक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट कितना हो जाएगा, ट्वाइस, सॉरी अगर आप कंडक्टिंग शीट की गल करांगे तो ट्वाइस हो जाऊगा किस दे, नॉन कंडक्टिंग शीट दे। आ रिजल्ट तुसी की करना है, याद करना है, ये अपने को सैकेंड एप्लीकेशन सी किस दी, गोस लॉ दी। ठीक है जी, दैन आप डिस्कस करांगे थर्ड की है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सफेरिकल शैल ते होएगी। जो आप सफेरिकल शैल की गल करांगे तो उस टाइम देखो, हुण सफेरिकल शैल की अगर मैं गल करां, देखो किस तरह नाल बनेगा। ये अपने कोल की है, कोई भी सर्कल है, हुण आपां इहनूं स्फीयर बना लांगे, देखो इस तरह नाल। क्लीयर। तो हुण इत्थे की अपने कोल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस चार्ज इस वे दे नाल। तो हुण ये की है, सेंटर च अपने कोल ओ रेडियस है, तो इत्थे भी की आ जाएगा, एक सरफेस आ जाएगा, DS की आ जाएगा अपने कोल सरफेस आ जाएगा। तो इसनों भी आप गोस लॉ दे नाल की है समझ लांगे, एक स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस R है, DS स्मॉल कोई एरिया ले लिया किसी पूरे आप गोशियन सरफेस का, तो अपने कोल की आ जाएगा, गोस लॉ E वैक्टर डॉट DS वैक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन नॉट। क्लीयर। इत्थे हुण एंगल कितना बन रहा अपने कोल 0 डिग्री, तो सीधा आ जाऊगा E
ds cos ਬਾਏ क्यू बाय ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। क्लीयर। ਹੁਣ देखो ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਵੈल्यू पुट कर दो 4 पाई आर ਸਕੇਅਰ इज इक्वल टू क्यू बाय ਐਪਸਾਈਲਨ नोट। ਹੁਣ ई ਦੀ वैल्यू निकालनी है तो ई ਨੂੰ एक साइड रख लो और बाकी चीज़ एक साइड ले जाओ 1/4 पाई ਐਪਸਾਈਲਨ नोट क्यू बाय आर ਸਕੇਅਰ। क्लीयर। ये अपने कोल की बन गया जो इलैक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शैल तो की बिहेव करता जो पूरा का पूरा चार्ज होगा कितने कॉन्सनट्रेट करूगा एट सेंटर। सेंटर ते की करूगा कॉन्सनट्रेट करेगा। ये तुहाडे कोल की आ गई वैल्यू आ गई। नैक्सट अगर पॉइंट की है इनसाइड है, अगर सैकेंड पार्ट करिए, अगर तुहाडे कोल कोई पी पॉइंट है जो की कर रहा है शैल दे इनसाइड है, शैल दे की है सो इनसाइड है अंदर है, इनसाइड है तो आपां की करांगे देखो हुण जदों शैल दे अंदर है तो अपने कोल जो चार्ज की हो जाएगा इनसाइड कितना हो जाएगा चार्ज 0। अगर अपने कोल चार्ज 0 हो गया तो इलैक्ट्रिक फील्ड भी की हो जाएगा 0 हो जाएगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्लीयर। थर्ड केस की गल करते हैं। थर्ड अपने कोल की केस हो जाएगा जदों की है अपने कोल कोई भी पॉइंट ऑन द सरफेस है, ऑन द सरफेस है, जो ऑन द सरफेस है तो अपने कोल स्मॉल रेडियस की इक्वल हो जाएगा कैपिटल रेडियस दे तो अपने कोल ई किस दे इक्वल होंगे 1/4 पाई ਐਪਸਾਈਲਨ नॉट टाइम्स किस दे क्यू बाय आर ਸਕੇਅਰ आ गया। कैपिटल में स्मॉल ਨੂੰ रिप्लेस करता कैपिटल ना तो आप एक की है पिछे अगर आप गल करिए क्यू की वैल्यू कितनी होंगी अपने कोल जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की गल करते हैं तो क्यू अपने कोल कितना होंगे सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर ਸਕੇਅਰ दे। इसकी अगर मैं वैल्यू इस दे विच पुट करदा क्यू दी ई इज इक्वल टू 1/4 पाई ਐਪਸਾਈਲਨ नॉट सिग्मा 4 पाई आर ਸਕੇਅਰ बाय आर ਸਕੇਅਰ। आर ਸਕੇਅਰ नाल आर ਸਕੇਅਰ सॉरी आर ਸਕੇਅਰ नाल आर ਸਕੇਅਰ कैंसल 4 पाई ना 4 पाई कैंसल। क्लियर। तो अपने कोल की बचता है सिग्मा अपॉन ਐਪਸਾਈਲਨ नॉट ई दी। आ अपने कोल की आ गया थर्ड रिजल्ट आ गया कि किसका आया अपने कोल जदों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी शैल ते कीती गई है। ठीक है जी। इस नाल तुहाडा गोस दे एप्लीकेशनस एंड वो क्लीयर कंप्लीट हो चुके हैं। नैक्सट अपने कोल अगर आप गल करिए की आ जाता है, नैक्सट देखते हैं। नैक्सट टॉपिक है देखो इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। देखो इसनों डिस्कस करते हैं। सब तो पहला अगर मैं गल करा देखो लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटैग्रल ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं गल करा तो इस दे विच देखो की है, देखो कोई भी आप लैट कर लेने कोई सोर्स चार्ज अपने कोल क्यू, सोर्स चार्ज की प्रेजेंट है क्यू प्रेजेंट है कितने अगर मान लो 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स बना लेने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एंड जेड एक्सिस तो कोई भी की अपने कोल क्यू चार्ज प्रेजेंट है और रीजन ते प्रेजेंट है। क्लियर। तो एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट प्रेजेंट है जो की है हेल्ड करेगा इक्विलिब्रियम ते, इक्विलिब्रियम ते की करेगा हेल्ड करेगा एट पॉइंट पी ते पोजीशन वैक्टर की हो जाएगा आर। इत्थे अपने कोल पोजीशन वैक्टर की हो जाएगा आर हो जाएगा और रीजन तो इलैक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगी चार्ज क्यू नोट ते वो आप दसते हैं। क्लीयर है। देखो हुण आपां ने की है फोर्स पढ़िया सी चार्ज क्यू नोट ते तो फोर्स अपने कोल किस दे इक्वल हो जाएगी माइनस क्यू नोट ई वैक्टर दे। हुण ये नैगेटिव क्यों आया, नैगेटिव का मतलब है जो फोर्स की है इक्वल ते ओपोजिट है कि इसदे जेड़ा चार्ज की है अपने कोल इक्विलिब्रियम दे विच, चार्ज की अपने कोल इक्विलिब्रियम दे विच तो अपने कोल जो फोर्स है वो की है इक्वल एंड ओपोजिट है। क्लीयर। तो हुण जो टेस्ट चार्ज नूं अगर मैं डिसप्लेस करवा देनी हाँ मीनस टेस्ट चार्ज नूं मैं क्या एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट ले आने डिसप्लेस कितना करवाता मैं DL डिसप्लेस करवाता। तो अगर आप गल करिए जो मैं डिसप्लेस करवा दूंगी तो अपने को डिसप्लेसमेंट का मतलब क्या वर्क डन करवाता, वर्क डन हो रहा एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। वर्क डन कितना होंगे अपने को फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट होंगे। तो हुण वर्क डन DW ले लांगे, फोर्स F वैक्टर
ਡਾਟ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਨੋਟ ਈ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਡੀਐਲ ਵੈਕਟਰ। ਕਲੀਅਰ, ਡੀਐਲ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮੋਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਈ ਵੈਕਟਰ ਟੂ ਡੀ ਐਲ ਵੈਕਟਰ। ਦੇਖੋ A ਤੋਂ B ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ A ਟੂ B, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ A ਟੂ B ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਨੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦਾ 1 ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ A ਟੂ B ਵਰਕ ਡਨ E ਡੋਟ ਡੀ ਐਲ, E ਵੈਕਟਰ ਡੋਟ ਡੀ ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਅ ਸਰਟਨ ਪਾਥ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅ ਫੀਲਡ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਅਲੋਨ ਅ ਪਾਥ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਮੂਵ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਆ ਸੌਰੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਇਆ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ A ਐਂਡ B ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪਾਥ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਟੌਪਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।